बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ګران کتونکو زه مجتبی احمد او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. د تحصیلي کاټلنګ بیزو خرکی روډ باندې د بجلیګر او د فیکټرۍ خلاف عوام احتجاج کړی دی. د عوامو څه مطالبات دي، عوام څه غواړي، راځئ چې وګورو. ټول شوی دی چې دا سکریپ او پرنس چې دی دا لوګیا کوي او بیمارۍ جوړوي. زما په خپله کور وه د بیماره ده، بس بچي مې په سعودي کې ګټي او په هغې باندې لګوم او دغه روزګار دی. خو په دې کې نور داسې کسان دي چې ځان د وړو تر وړه نشي پیدا کولی، نو د کینسر او د ګردو او د دې بیمارو علاج به څنګه کوي؟ او وړو ته او غټو ته دا بیمارۍ لګېدلي دي. زه ملک شوکت صاحب ته او علي محمد خان ته خواست کوم چې تاسو راپاسئ او د دې مخنیوی وکئ، ځکه چې تاسو زموږ مشران یې. تاسو له موږ څو پیرې ووټونه ښه په غونډه باندې درکړو. یوه پیره علي محمد خان راغی او چرمین صاحب وویل ستاسو د علي محمد خان خوښ دی، موږ ویاو لکه دا پی ټي آی پارټي زموږ خوښه وه. خو هغه پی ټي آی والاړو دا ونه وی چې تاسو خره یې او که سپي یې او که دلته انسانان یې او که څاروي یې. د نن ورځې پورې هغې د دې خبرې څه مخنیوی نه دی کړی. او دغه یو طرف ته که چې په دې سړک روان وي نو خدایي سلام هم نه اچوي چې دا انسانان دي او که سپي وي. او چرمین صاحب یې ستاسو د علي محمد خان خوښ دی، موږ بیا وځي که نه. لکه په غونډه مو له وټونه چې څومره وټونه نو ټوله مو له ورکړي په دې پورې غني خان بانډه کې پروګرام او چرمین صاحب ژوندی دی. تپوس دې یو سړی وکړي، خو د نن ورځې پورې هغه دا نه دي ویلي چې یاره دلته یا انسانان دي یا دا مري یا راشه د دې تپوس وکړه. نو چې زموږ مشران دغه شانتي شي نو موږ به له چا نه تپوس کوو، چا ته به ویو؟ د علي محمد دغه له ملک شوکت صاحب چې تاسو درخواست ورکړی نو هغه تاسو له بایي باندې څه جواب درکړو؟ او جي دا کسان ټول تللي وو علي محمد خان سره لکه څه ځای منډه مو والي وه. خو بیا دی بره بجلیګر ته رالو او بره بجلیګر والا له چیلې لالي کړو. نو هغه چیلې چې وخوړو نو بیا به دوګې نه کوي. ما ورته وویل چې خدای ټول واپس لاړ. او علي محمد خان دې خدای خوشحاله کړي خپل ګاډي ته وخته شو. دا زموږ د علاقې خان دی او موږ د ده کشران یو که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو وړاندې ستاسو ډېره ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ د غریبانو تپوس وکړو. نن نه علي محمد خان زموږ د غریبانو تپوس کوي، نه ملک شوکت زموږ تپوس کوي. ولې نه کوي چې هغوی لاړه اوچت اوچت ځایونو ته وخته. زما او ستا په غریبانو ته خلکو باندې هغوی څه کوي؟ موږ ته د دې نه مسله ده، تکلیف دي راته. موږ ته ډېرو مشرانو ماشومانو ته د کینسر بیماري ولګېده، اوس هم د هغې کاغذونه زموږ سره شته دی. موږ اے سی لم وړلي، موږ بي سی لم وړلي، موږ ډي سپي لم وړلي، چا پې هم عمل نه دی کړی. زموږ د غریب عوام به څوک تپوس کوي؟ ملک شوکت به زموږ په عوام باندې څه وکړي؟ علي محمد خان به زموږ په عوام باندې څه وکړي؟ عمران خان به زموږ څه وکړي؟ هغوی ته خو تکلیف نشته، تکلیف موږ ته دی. مخکې وزیر اعلی ته کوم وکړو، اوس په هغې موږ زمیندار کس کوو. خبره مشران موږ مخکې مشران چې دوی څه وکړه بس موږ ته منظوره ده. موږ مشران مخکې شته، موږ دغه ورپسې یو زمیندار کسان. ګرانو کتونکو تاسو واورئ د عوامو خبره. وخت کې زموږ سره موجود دی د فیکټرۍ جنرال منیجر عبدالرحمن چې د فیکټرۍ او د عوام په منځ کې څه معاهده شوې وه. جنرال منیجر په دې باره کې څه وایي؟ सर हुए ये बंदे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने बलवा किया हमारे में, ट्रक गेट पर आ गए थे बगैर किसी बताए हुए या हमें बगैर इसकी इतला। अदनान अकबर, अरशद अकबर और कुछ इस तरह सरकर्दा बंदे जो उनके साथ, और उन्होंने कोई 40-45 बंदे गांव पे इकट्ठे किए, हमारे ट्रक गेट पर आ गए, हमारा इन आउट बंद कर दिया। हमने कहा कि आपका मुतालिबा किया है, क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ से हमने ये फैक्ट्री खत्म करनी है। हमने कहा कि वजह क्या है कि ये आपकी मलकियत नहीं है। हमने कहा कि ये गवर्नमेंट ने हमें अलर्ट किया है और उसके अलर्टमेंट के तमाम प्रूफ हमारे पास हैं और हम गवर्नमेंट को कोई भी इदारा हमसे मांगे आप उसके मजाज नहीं, हम उसको दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहर का जो पानी है इसमें हमें तकलीफ है, आप लोगों का जो है कुछ वेस्ट इसमें आ रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई वेस्ट नहर की तरफ नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट उनका यह था कि आपके फिल्ट्रेशन प्लांट 3 महीने से हमारी फैक्ट्री, हमारी हाइड्रो पावर प्लांट वो बंद है, इनको धुआं कहां से आते हैं?
3 जनवरी से आप डॉक्यूमेंट्री चेक कर सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से चेक कर सकते हैं, और आप एसी काटलंग से, SHO काटलंग से चेक कर सकते हैं कि जो मुआहिदा हुआ था वो 5 नुकाती मुआहिदा क्या था? वो 5 नुकाती मुआहिदा ऑलरेडी SHO के पास वो मौजूद है और हमारे पास भी रिटर्न में मौजूद है, जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। वो 5 नुकाती मुआहिदा ये था जी कि नंबर 1, लेबर मुकामी होनी चाहिए, ठीक, जो कि हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पास मास है मेरे तमाम लेबर KPK है। नहीं, KPK का नहीं, लोकल का मतलब ये कि लेबर सारी मुकामी लोग हैं, लेबर सारी मुकामी लोग हैं, मास है टेक्निकल के, ठीक, टेक्निकल जो हमारे ऑपरेटर डिप्लोमे वाले वो तो आइए, वो भी KPK के मैदान और नौशेरा के रिलेटेड एरिया के रहने वाले, ठीक। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 है उनका पर्दे की शिकायत है। पर्दा आप देख ले, पर्दे की दीवारें इतनी ऊंची है कि बंदा ट्रक के ऊपर खड़ा हो गया, 2 बंदे भी खड़े हो जाए तो बाहर कोई चीज नजर नहीं आती, ठीक। नंबर 3 है गटर का पानी, वही जो पहले बताया है, हाँ, इन्होंने बात की हाँ जी। उसके मसले में इन्होंने कहा जी वाशरूम उस साइड पे है, नहर की तरफ है। हमने कहा जी अगर नहर की तरफ है इसमें कोई एतराज है, पानी नहीं है वहां लगे जाता, हमने वो उनके टैंक वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन हम फिर भी वो अंदर कर लेंगे, वो हम बना रहे हैं, वो तो जाहिर बात है कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जिसको ऐसे करना है, बारिश उसमें होती रही, और ये इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 हफ्ते के लिए मुआवजा है। अच्छा, नहीं, वीडियो बयान जो रिटर्न में कोई नहीं लिखा हुआ है, कोई मुआवजा नहीं लिखा। एक थी लोडिंग अनलोडिंग के शाम के बाद लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी, वो भी नहीं होती, ना लोडिंग होती है ना अनलोडिंग होती है, और ये तो वो तो काफी अरसे से नहीं कभी हुई, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था। इसलिए एक पॉइंट था कि हमें बिजली दी जाए यहां से, क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है हमारे यहाँ बिजली होती है, उनके यहाँ बिजली नहीं होती, उनको ये भी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में पेस्को, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाजत नहीं देती, उनको कहा कि पेस्को को इजाजत ले आओ, नेपरा से सारी ठीक इजाजत ले आओ और आपको बिजली दे देंगे, भिजवा देंगे। एक और भी था, एक और था रास्ते का कि किलो वाला रास्ता जो है, ये तो सवाबी से कहां से ट्रक आते हैं, तो जो रास्ता नहीं है। नहीं, जब आप लोगों का इरिगेशन के साथ जब मुआहिदा हुआ था, एक एग्रीमेंट आपका हुआ है, जी जी, तो उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि ये जो आपके साथ जितना भी रोड गुजर रहा है ये चूंकि इरिगेशन का रोड है, जी जी, तो इसकी मुरम्मत की जिम्मेदारी आपकी होगी, ये क्लीन साफ सुथरा होगा? कोई चीज नहीं, ऐसा कोई मुआवजा नहीं है, इसको क्लीन अप हम करते हैं, बकायदा हमने बंदा रखा हुआ, उसको पैसे देते हैं, वो मैग्नेट लेके वो वहां से लेके जहां तक हमारा फैक्ट्री का एरिया वहां तक उस गेट तक मारता है। अच्छा, डेली बेसिस के ऊपर वो मारता है। अच्छा, और आप पूछे इसमें और कोई क्वेश्चन है जब जरा काइंडली दे रहे मुझे। हाला एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट गेट पर लगाया जाएगा, ये क्या है? इसके लिए ये लोगों का जो ना रिक्वायरमेंट है कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये देखें, इसको पढ़े, ये इसके लिए एक महकमा है, पहले नंबर पे जब ये चलेगी तो तब ये आएंगे ना, तो जब ईपी, तो जब ये चलेगी नहीं तो ये कैसे आएंगे? महकमे को हमने लेटर खुद लिखा है कि आगे चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो लोग काम करते थे, पहले दिन आपने हमें बताया था कि ज्यादातर जो लोग हमने यहाँ से फारिग किया बेड कैरेक्टर से या इस तरह कोई इंतशार फैलाते थे, वही लोग ज्यादातर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हकीकत हमें अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं, जो लोग अभी हमने निकाले फारिग किए, जो लोग हमने फारिग किए, वो चूंकि फैक्ट्री इतने जो प्रोजेक्ट है इतना मुनाफा नहीं दे रहा, तो हम उन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने कैमरे वगैरह लगा लिए, जिसके लिए वो नाइट चौकीदार, जो रात को चौकीदार थे, 4 घंटे ड्यूटी करते थे, उनको हमने फारिग कर दिया, और केपी के कानून के मुताबिक फुल बेनिफिट जो उनके बनते थे वो दे के तब फारिग किए उनको। आखिरी क्वेश्चन है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक तो रात को शोर होता है, जो हम यहाँ पे नजदीक घर वाले डिस्टर्ब जी जी जी, ठीक है, और सेकंड यहाँ से जो धुआं निकलता है, जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे जितने वाइट कपड़े या जो कपड़े बाहर हमने बिछाए होते हैं वो बिल्कुल तबाह हो। ये बात वो तो बिल्कुल झूठ पर मबनी है, और इनके पास अगर कोई हकीकत है तो आपके कैमरे के सामने लाएं, हमें दिखाएं। अगर इनके पास प्रूफ है तो इससे पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया,
बलवा किए आए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं लेकर आए, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट लगी हुई है। अच्छा, कोई इनसे कोई ऐसी जहरीली गैस वगैरह खारिज होती है कि जिससे कैंसर वगैरह, क्योंकि वो यही इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे कैंसर हुआ है। बिल्कुल 200% ये झूठ है। अगर कोई इनका हुआ है तो वो ले आए अपना। सर EPA वाले हमारे विजिट करते हैं, हमारे पास आते हैं। EPA का जो डायरेक्टर है डॉक्टर बशीर, इससे ये कंफर्म कर सकते हैं, ये लोग पेशावर जा सकते हैं, मर्दान में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इस किस्म की कोई बात या इनके पास प्रूफ नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया कि हमारे पास पाकिस्तान की दुनिया का बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। ठीक, इनको जो प्रॉब्लम है, कुछ एक और प्रॉब्लम है, अंदर है ब्रिगेडियर साहब, वो इनकी बहुत वेलफेयर करते हैं, हर लिहाज से बहुत वेलफेयर करते हैं। हम खाना इनको फ्री देते हैं, उनकी लेबर 500 है, हमारी 550 है। वो 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, हम 7 घंटे ड्यूटी देते हैं। खाना लोग घर से नहीं खा के आते हैं, हम इधर फ्री खाना देते हैं। ये सब तमाम वेलफेयर हम करते हैं, उनको पे कानून के मुताबिक देते हैं। हर चीज जो है ना ब्रिगेडियर साहब इनकी वेलफेयर करते हैं। फैक्ट्री से कोई बंदा बीमार हो जाए, उनको इधर हमसाए में खुशी गमी सारा कुछ, जनरेटर देते हैं शादियों के ऊपर, इनको चरपाइयां देते हैं। यानी कि दुनिया जहान की जो वेलफेयर की जा सकती है वो हम करते हैं। इरिगेशन के साथ एग्रीमेंट हुआ इंडस्ट्री का। जी सर। ये जगह आप लोगों ने लीज पे ली है। जी सर। अब इंडस्ट्री का कोई नाम वो कह रहे हैं कि नहीं, तो ये इनकी इंडस्ट्री क्या चीज है। और दूसरी बात ये कि ये जो जगह है ये रेजिडेंशियल है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में इनको इजाजत नहीं है और इन्होंने खुद से, सिर्फ इनको पावर प्लांट का मिला है, इन्होंने खुद से इंडस्ट्री बनाई है। KPK की हुकूमत मौजूद है सर, ठीक है। और तमाम डिपार्टमेंट, तमाम महकमे जो ना हमारे विजिट करके आए, हम लेबर लॉ के साथ रजिस्टर्ड है सर, हम EPA के साथ रजिस्टर्ड है सर, ठीक। इसी तरह हम क्वालिटी कंट्रोल के साथ रजिस्टर्ड है सर। तो हम ये तमाम काम जो कर रहे हैं ये इलीगल नहीं कर रहे, हम लीगली कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ KPK के साथ हर साइड पर तमाम जो महकमे जो हमारे साथ रिलेटेड है उनके साथ हम रजिस्टर्ड है।